Hi, good morning. Good Good morning, morning. ma'am. Hi, a very happy good morning. Very Good morning. morning. Good morning. Amazing morning, huh? So Good. today we'll start with our affirmations. Today's chapter is not very long like yesterday. So we would have time. So we'll just get ourselves into that zone. Sunrise ke time affirmations like really works well. So I will speak, and then you can of course repeat after me in your mind or out loud. If you can do out loud, please do that. That would be another level then. So we start with, I love myself. I love myself. प्रिया म्यूट कर लो. प्रिया तनेजा म्यूट कर लो. I love creating the life that I would love to. I am being easier on myself. I am being easier on others. I am learning and growing more. I am open to new and wonderful possibilities. I am open and receptive to more money flowing to me. I am open and worthy to be financially abundant and free. I am easily fulfilling all my dreams one by one. I am talented and getting better and better every day. I am thriving and flourishing in life. I am rising above every obstacle. I am strong and healthy. I am in the best shape of my life. I am happy with my body. I am always full of energy and vitality. I am dedicated to improve my health and fitness. I am easily shedding extra fat. I am enthusiastic and excited about life. I am a confident person. I am enjoying a healthy lifestyle. I am radiant and youthful. I am victorious in life. Everything is always working out for me.
I am thankful for all the good things happen in my life. I am successfully taking steps in the right direction. I am kind and understanding to others. I allow others to feel comfortable and welcome around me. I am constantly creating a better me. I am a money magnet. My income is constantly increasing. I attract money from all over the world with ease. I add value to myself and all the others around me. Today is the best day of my life. We are done. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So we have to, this has to be a constant self-talk. This has to be a constant self-talk. Like all these things we have to keep telling to ourselves throughout the day. Because subconscious mind इसको हमने पढ़ा था ना अभी 3-4 दिन पहले कि your subconscious mind is a recording machine. It will record whatever you are thinking and speaking and it will replay that only for you. Obviously जो record हुआ है वही play होता है ना. So हम अपनी recording machine में यही सारी चीजें डालेंगे ताकि हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाए और सबकॉन्शियस को ये तो पता नहीं होता है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है सो इसलिए भी Yes. Thank you, ma'am. Thank you. नहीं कराई है जो मैं हमेशा करती हूँ विच इज आई एम फिट फर्म एंड मस्कुलर. मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने बॉडी वेट के साथ बट आई लाइक टू बी लीन एंड टाइट एंड यू नो लाइक हैव गुड मसल्स on my body. So this is the reason I didn't get that done. But अगर आपको वो वाला करना है, if you want a very toned and a fit body, like tight, absolutely. So you can actually, एक तो हमने किया ही है that I'm shedding all the extra body fat. And second, I'm firm, fit and muscular. Then you're going to be like really toned and tight. So if you want, those of you who want like a tight body and very toned and muscular, so you can actually do that affirmation. But वो बहुत जेनरिक नहीं होता है इसलिए मैंने बोला नहीं था. ओके सो आज का हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. कल का हेल्थ था, डे बिफोर यस्टरडे इट वाज रिलेशनशिप्स एंड टुडे इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर मनी. आई मीन लाइक दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. और अभी हम क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमको पास्ट में जाके बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि कहाँ लोगों ने हम पे पैसे खर्च किए थे और हमें उसके लिए आज थैंक यू करना है. मतलब बचपन से लेके अभी तक यू नो जितना भी किसी ने भी खर्चा किया जिसकी वजह से हमने थ्राइव किया है, जिसकी वजह से हमने खाना खाया है, जिसकी वजह जो गिफ्ट्स हमको मिले हैं, बहुत सोचना पड़ेगा. और ये जो पास्ट वाली प्रैक्टिसेस होती हैं जो अभी हम लगातार कर रहे हैं फॉर ऑल दीज डेज, ये जितना इन डेप्थ करेंगे और जितना आप इसको टाइम दोगे डिलीजेंस के साथ में, सिंसियरिटी के साथ, एंड मोर यू विल डिग डीपर, more you will see your current and the future changing. अगर किसी के साथ constantly कोई चीज चेंज नहीं हो रही होती है तो हम उनको हमेशा पास्ट में भेजते हैं वापस. यू नो लाइक करंट प्रैक्टिसेस में भी अगर करंटली जो अभी हो रही है मैजिक डांस, मैजिक वॉन्ड, अगर इनसे भी सिचुएशन चेंज नहीं होती है इसका मतलब है पास्ट के गड्ढे बहुत डीप हैं. तो हम दोबारा से उनको पास्ट में ही भेजते हैं that you have to write gratitude for you know like everything that has happened in the past in related field. So आज का जैसे मनी है, so अगर मनी में आपको चैलेंज आ रहा है
सो वो बहुत आराम से, इसका मतलब है कि पास्ट में कहीं पे कुछ गड़बड़ की है, बहुत कंप्लेन की है, पैसे को लेके बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, पैसे को बुरी लाइट में बात की है, इस तरह से कुछ ना कुछ। सो ये जो इमेज है आज की, सो इमेज में एक बैग रखा हुआ है, उसमें पूरा इट इज स्टफ्ड विद मनी, विद करेंसी, and it is popping out from there, and there is a lot of magic dust उसके अराउंड। पैसा ही पैसा है और उसके साथ खूब सारा ग्रेटिट्यूड की डस्ट उसके अराउंड है। सो दिस इज अबाउट इट एंड दिस इज हाउ आवर लाइफ विल बिकम नाउ, एंड वी विल सी दैट पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आता जाता है, लेकिन आता जाता है। सो या प्लीज स्टार्ट रीडिंग। आई थिंक इट इज Yeah, good, yeah. Neeti. Yeah, good morning, everyone. Yeah, day 5, magic money. Gratitude is riches, complaint is poverty, by Christian Science Hindle. If there's a lack of money in your life, understand the feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for everyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, "Thank you," with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like a toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television,
make phone calls, use lights, electricity, and water. All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it is your salary for work, a refund, or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5, magic money. Point 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Point 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Point 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Point 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life. Point 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out
and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Point 6. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Point 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Niti. Thank you. Change the name on your this thing. I'm the name, unable it to says get that, iPhone. So Okay. Right. names are very, very important because that's your basic identity. Yeah, So I need to initially understand. in the beginning of the chapter, it mentioned that किस लिए पैसे का स्ट्रगल है आज अगर आपको फ्रीडम नहीं है. सो आई ऑलवेज टीच यू अबाउट फ्रीडम वर्ड. लाइक फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. जब भी हम फ्रीडम सेलिब्रेट करते हैं वो किसी से भी, फाइनेंशियल फ्रीडम कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि आप कितना खर्च कर रहे हो, आप अपनी फेवरेट चीज बहुत आराम से खरीद पा रहे हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है आप बहुत आराम से कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना. और उसके बाद आपके पास बहुत सरप्लस होना चाहिए, जो हमने एफर्मेशन डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में भी पढ़ी थी. एंड आई ऑलवेज हैव अ डिवाइन सरप्लस, लाइक ऑल माय एक्सपेंसेस एंड नीड्स आर मेट एंड आई आल्सो हैव अ डिवाइन सरप्लस. सो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो द एफर्मेशन दैट वी डिड. अगर इसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज्यादा हर चीज के प्राइस टैग्स देखने पड़ते हैं, मतलब बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. एक तो होता है कि आपको पता होना चाहिए आपने कितने वर्थ की चीज ली है, दैट्स डिफरेंट. अगर खरीदने के पहले आपको बहुत ज्यादा हर चीज की प्राइस देखनी पड़ रही है, इसका मतलब है पास में कहीं ना कहीं वो कहीं पीछे से आ रहा है. हमने पास में बहुत ऐसी बातें की है जहां पे हमने मनी को यूज करके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए हैं. सो इन फीलिंग्स को अब हम नहीं करने की कोशिश करेंगे. वी कैन ट्राई, राइट? Even if you're minimizing them by about 50%, I think it's a job well done. So worried thoughts about money, पैसे की चिंता, पैसे को लेके जेलसी किसी और से, पैसे को लेके निराश होना, पैसे को लेके डिस्करेज होना, शक करना, या डर मन में पैसे के लिए बैठना. अगर ये वाली फीलिंग्स है तो इसमें लिखा हुआ है दैट ये सब सारी चीजें हमारे पास और पैसा नहीं लेके आएंगी, बिकॉज ये लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है. इसीलिए अब से कोशिश हम करेंगे दैट हम मनी के बारे में कंप्लेन ना करें, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करें घर में पैसे को लेके, और फ्रस्ट्रेटेड ना हो पैसे को लेके. और किसी चीज को, सपोज आप गए हो, आपने कोई स्पून का सेट देखा है विच यू रियली लाइक, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि अभी वो महंगा है, विच इज ओके. ठीक है, सब लोग सब कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. या आपने कोई आउटफिट देखी अभी, वो बहुत महंगी है, लेकिन उस आउटफिट को बहुत सारा लव दो और सोचो दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस अगेन लेटर. सो लेकिन ये नहीं बोलना है कि अरे इतनी तो वर्थ भी नहीं लग रही है, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं सोचना है. ठीक है, डेवलप अ लाइकनेस फॉर इट and keep that in your heart, and like say to yourself that I will definitely buy it later and I will create the money to buy. So कभी भी hatred और complain के साथ में कि अरे ये बहुत महंगा है, ये तो वर्थ नहीं, ऐसा है वैसा है, वैसे भी मुझे कलर नहीं पसंद था, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, इसलिए मनी के बारे में हमको बहुत माइंडफुल होने की जरूरत है, विच वी आर नॉट समटाइम्स, है ना. और इन प्रैक्टिसेस से, ग्रैटिट्यूड से, मनी सबसे आसान कर्मा होता है चेंज करना. मतलब मनी इज द फर्स्ट थिंग यू विल सी द डिफरेंस इन, इट विल स्टार्ट रोलिंग इनटू योर लाइफ अगर हम ये प्रैक्टिसेस डिलिजेंटली करते हैं. नॉट जस्ट मनी वाली प्रैक्टिस, जो बाकी प्रैक्टिसेस भी अगर हम डिलिजेंटली करते हैं तो हमारा वी विल सी दैट मनी का इनपुट बढ़ने लग जाता है, एंड दैट इज हाउ इट इज. सो अब अभी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, पैसा कम है, नीड्स एंड एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे हैं, बिल्स पे करते वक्त एक थोड़ा सा वो लगता है कि इतना ज्यादा बिल आया है, या कोई भी, डजंट मैटर, यू एटलीस्ट हम आर्टिफिशियली तो थैंक यू बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं, दिल से नहीं आ रहा, दिल में अभी भय है, चिंता है, बट डजंट मैटर. सो आप मैकेनिकली टेक्निकली वैसे बोल दो, थैंक यू फॉर ऑल द मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू दैट आई हैव सो मच मनी, खूब मनी को ब्लेस करो.
ठीक है, जो वॉलेट में अगर आपके 400 रुपीज भी पड़े हुए हैं, उस मनी को बहुत ब्लेस करो। मनी को बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, एंड यू विल सी दैट कितनी आराम से, मतलब दैट इट स्टार्ट्स कमिंग बैक टू अस। ओके, सो वैल्यूइंग द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए हमको करंट सिचुएशन अपने दिमाग से हटानी होगी, and we will have to have abundant thoughts that I am getting better and better, my income is increasing constantly, I am receiving money from multiple sources of income with ease. Okay, so ऐसी चीजें हमको बताते रहनी पड़ेगी, और थोड़ा खर्चा भी दिल खोल के करो। कभी कभी जेन्युइनली कंजूस होते हैं हम लोग, मतलब ये तो होता है कि ठीक है पैसा है और उस हिसाब से, बट पैसा हो के भी कंजूस होते हैं, नहीं, बहुत लोगों के वॉलेट से पैसा आराम से नहीं निकलता है। अगर आप होल्ड ऑन टू मनी कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, अपने मन मार के या जो भी, तो पैसा स्टैग्नेट हो जाएगा। बिकॉज मनी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेशन में रहता है, इट हैज टू कम एंड इट हैज टू गो, इट हैज टू कम एंड इट हैज टू गो, और अगर गो नहीं होता है तो कम भी नहीं होता है फिर। So it has to be in circulation. That's very, very important. पैसा खर्च करेंगे तो पैसा आता है, और जिस भी चीज को अगर आपको कोई चाहिए, जो चीज अफोर्ड कर सकते हो, जब भी पैसे खर्च करो, बहुत खुशी का, बहुत लव होना चाहिए और ब्लेसिंग होनी चाहिए पैसे में। ओके, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इसीलिए हमको बहुत ग्रैटिट्यूड की जरूरत है, और एक्चुअली डिफिकल्ट होता है, कभी कभी पैसे नहीं होते हैं और फिर भी हम थैंक यू फॉर द मनी और इस तरह से करते हैं, बट डजंट मैटर। हमको इस बुक में, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज दैट हमको टूल्स एंड असाइनमेंट्स मिलते हैं जो करना बहुत आसान हो जाता है। तो अपने आप देखोगे कि आपका रिश्ता पैसे के साथ बदल जाता है जब असाइनमेंट्स हम करते हैं। तो ये असाइनमेंट्स करना जरूरी है, जो बहुत बहुत जस्ट गेटिंग द नॉलेज और मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, समटाइम्स इट डज नॉट वर्क, बिकॉज लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और जैसे ही वो उतार होगा तो वापस से वो कंप्लेन की फीलिंग आ जाती है। बट असाइनमेंट्स हमको मोमेंटम में रखते हैं, रिदम में रखते हैं। सो आज वाला जो चैप्टर है, जो आज वाला असाइनमेंट है, उसमें हमको कम से कम आप ना 7 मिनट का वो लगा लेना टाइमर अपने वॉच पे और उसके अपने फोन पे, एंड देन आप बचपन में जाना जहां पे सारे जो खर्चे हुए थे, मिनिमम 7 मिनट्स है, यू कैन टेक इट टू 30 मिनट्स ऑल्सो, ठीक है। मन में करने की ये प्रैक्टिस है। आप एक जगह बैठना, sit quietly at a place where nobody is disturbing you, no people going and coming in the room and out of the room, that's very very distracting, ठीक है। एक जगह बैठना और गो बैक अपने बचपन में, एंड थिंक थ्रू कि आप जस्ट बॉर्न हुए हो हॉस्पिटल में, बेड में, ठीक है, यू आर विथ योर मदर, एंड वहां से खर्चा आपके लिए होना शुरू हो गया था, ठीक है। पैदा होते से ही हॉस्पिटल का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा, ठीक है, जो नए नए कपड़े पहनाते हैं बच्चे को, सब कुछ जो पैसे से आया था उसके बारे में सोचना है। पैसे से कपड़े पहने थे, ठीक है, फिर हॉस्पिटल का पूरा बिल पे किया था, बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेके आए थे, कुछ लोग वो जॉनसन एंड जॉनसन के वो लेके आते हैं प्रोडक्ट्स, क्रीम्स एंड पाउडर एंड ऑल दैट, कई लोग कुछ लेके आते हैं, वो सब पैसे से आया था। तो वो बहुत बचपन वाला तो हमको याद नहीं है किसने क्या दिया था, जब तक हम इन्फेंसी में थे तब तक हमें याद नहीं है, बट हमें ये तो पता है ना कि हमारे शूज हमको पेरेंट्स ने लाके दिए होंगे, है ना, हमको खाना दिया होगा, जब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब वीनिंग करते हैं और जब टॉप फीड लेने लग जाते हैं तो बच्चा बनाना खाता है, सेरेलैक खाता है, उन सब के पैसे। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे हम बड़े होते हैं, हमारे सारे कपड़े, शूज, एवरीथिंग लाइक हैज टू बी ब्रांड न्यू। फिर उसके बाद स्कूल में जब जाना शुरू करते हैं तो हमारे पास साइकिल आती है, पेरेंट्स साइकिल ला के देते हैं, हमारे नाना नानी और दादा दादी भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं जो पैसे से आता है, क्योंकि आज का पैसे का है। तो सारी वो चीजें जो पैसे से, खाना हमने इतना सारा इतना अच्छा अच्छा खाया, पेरेंट्स कहीं बाहर ले जाते थे, हमारे बर्थडेज मनाते थे, ठीक है, रोज सुबह उठ के हमको फ्री में ऐसे टूथपेस्ट और टूथब्रश, टंग क्लीनर सब मिल जाते थे, वो पेरेंट्स नहीं दिए ना, या जिसने भी ग्रैंड पेरेंट्स ने दिए होंगे। तो वो है शैम्पू, हम बचपन से करते आ रहे हैं, जब तक हमने कमाना नहीं शुरू किया था तब तक शैम्पू तो ऑब्वियसली कहीं और से ही आता था उसके लिए। फिर वेकेशंस पे जो आप जाते थे, आप कहीं वैष्णो देवी गए, आप घर के बाहर गए, आप कहीं और गए, तो लगातार आपके वेकेशंस हो रहे हैं, उसके पैसे कौन देता था, कहीं से तो आते होंगे, उसके लिए थैंक यू।
तो इस तरह से फिर स्कूल बुक्स हर साल नई आती थी, उस पे फ्रेश फ्रेश उनकी स्मेल ब्यूटीफुल सी होती थी, उस पे कवर चढ़ाया जाता था, उसके ऊपर नेम टैग्स हम लगाते थे। पेंसिल बॉक्स होता था, हर साल नया पेंसिल बॉक्स खरीदते थे। फिर एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था, उसके अंदर सारे पेन्स और ब्यूटीफुल स्मेलिंग इरेजर्स और पेंसिल, उसके ऊपर कभी कभी कैप्स भी होती थी, उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके, पेरेंट्स पैसे देते थे उस गिफ्ट के लिए, कभी कभी खरीद के भी देते थे, उस पैसे के लिए थैंक यू। फिर इतने सुंदर सुंदर हेयर बैंड्स और बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स, पिंक कलर के, बॉयज जो होते हैं वो अपने लिए वॉच खरीदी होती थी, गर्ल्स वॉच खरीदती थी, उसके पैसे, उसके लिए थैंक यू। सो दिस, इस तरह से गीजर हम यूज करते थे, ठीक है, गर्म पानी होता था, कभी कभी बहुत जो पुराने लोग हैं उनके एक रॉड होती थी, इमर्जन रॉड बोलते थे, उससे पानी गर्म होता था, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। हमको गर्म पानी मिलता था सर्दियों में नहाने के लिए, हमें पता भी नहीं कि कहाँ से क्या पैसे आए। इलेक्ट्रिसिटी हम खूब अच्छे से यूज करते थे, है ना, इलेक्ट्रिक से सारे एसी होते थे, कूलर होते थे घरों में, उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद नए नए टीवी आए घर में, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे पहले, उसके बाद वो कलर टीवी आया, पेरेंट्स ने वो खरीद के दिया, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद व्हीकल कुछ ना कुछ तो थी, कभी बाइसिकल थी, कभी पहले तो वॉकर्स थे बचपन में, उसके बाद ट्राइसिकल आई, 3 पहियों वाली साइकिल बचपन में, उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद बाइसिकल आई, वो भी 2 साइड स्टैंड होते थे उसके सपोर्टिंग व्हील्स करके, तो वो वाली साइकिल हमने चलाई, उसके लिए थैंक यू पेरेंट्स को, या जिसने भी आपको दी, ग्रैंड पेरेंट्स ने दी तो उनको थैंक यू। फिर उसके बाद नवरात्रों में कंजक मिलता था, तो वो कभी कभी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी चीज थी उसके लिए थैंक यू। फिर आप अपने चाचू चाची के घर में गए होगे, मासी के घर में गए होगे, वहां पे जब आप वापस आते थे तो कुछ ना कुछ, वहां जाते थे तो वो बड़े टेस्टी टेस्टी आपको समोसे खिलाते होंगे, कभी मटर के, कभी आलू के, उस पैसे के लिए थैंक यू जो उन्होंने किया। फिर उसके बाद आप जब वापस आते थे तो आपके फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का खर्चा, आने जाने का, बस हम तो मजे से आते जाते थे, उस पैसे के लिए थैंक यू जो हम पे खर्च हुआ। उसके बाद स्कूल में कभी बाइबल फंड, बिल्डिंग फंड, ये फंड, या कोई एक्स्ट्रा पैसे देने होते थे किसी भी चीज के लिए, तो उस पैसे के लिए थैंक यू पेरेंट्स का जिन्होंने दिया। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, हमें अलग तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए थे, जब हम कॉलेज में, हमें लगता था ऐसा कोम्ब होना चाहिए, ये वाली क्रीम लगा के हम बहुत अच्छे लगेंगे, तो उस पैसे के लिए थैंक यू जिससे हम अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। फिर हमें सुंदर सुंदर सी बेल्ट्स कभी कभी चाहिए होती थी, उसके लिए थैंक यू, उस पैसे के लिए। फिर उसके बाद बड़े हुए, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस, जैसे भी यूनिवर्सिटी में आप बस से जाते थे या साइकिल से जाते थे या ट्रेन से जाते थे, उस पैसे के लिए पेरेंट्स का बहुत सारा शुक्रिया कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी कॉलेज की एजुकेशन दी और हमारे मनचाहे कॉलेज में एडमिशन कराया। अपने कॉलेज की फीस के लिए थैंक यू। रोज फिर शाम को जब हम कभी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, कभी कैंटीन में खाते थे, कभी वापसी में गोलगप्पे खाते थे, कभी छोले भटूरे खाते थे दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ, उस पैसे के लिए बहुत सारा थैंक यू। फिर उसके बाद हम बड़े होते गए, फिर हमारी शादी हुई, उस शादी में एक एक चीज आई, कभी साड़ी, सलवार कमीज, मेकअप के प्रोडक्ट्स, लॉन्जरी, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स ने दी, और उसके अलावा लाइक ज्वेलरी में इतने पैसे खर्च किए, उसके लिए थैंक यू। अगर आप लड़के भी हैं तो पेरेंट्स ने ही खर्चा किया, इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोगों ने एंजॉय किया शादी में, खाना खाया, बैंड बैंड वाले आए जो बजा रहे थे और सब डांस कर रहे थे उस पे, तो उन बैंड वालों को, उनको गिफ्ट्स भी देते हैं और पैसे भी दिए, उस चीज के लिए थैंक यू। सो जो चीज हमको, इतने सारे जिरोक्स हम कराते थे, अपने नोट्स, पेपर्स, किताबें खरीदते थे स्कूल में, कॉलेज में, उन सारी बुक्स के लिए और उस पैसे के लिए थैंक यू। ओके, सो हम जो है इस तरह पास्ट में जाके अभी ही हो गए हमारे 7-10 मिनट्स, इसका मतलब है हम बहुत आराम से लाइक 20-25 मिनट इस चीज के लिए आज लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमको करंट एंड फ्यूचर सिचुएशन ठीक करनी है उसके लिए हमको पास्ट में जाना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप सैचुरेट करोगे ग्रेटिट्यूड पास्ट में, आप देखना कि 2-2 दिन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। वी जस्ट हैव टू डू दैट।
ओके, दैट्स अबाउट इट. सो सारी मेमोरीज आप रिकॉल करो कि कहाँ पे किसने, मतलब आप अपने कजिन के यहाँ गए थे और वहां पे उन्होंने अगर आपको वो खिलाया. पहले एक वो कैंडी बार, वो ऑरेंज बार आती थी, अभी भी आती है, ऑरेंज बार आइसक्रीम जो सारे बच्चों को बहुत पसंद होती है. ठीक है, कभी कभी जलेबी किसी जगह की बहुत अच्छी थी, तो आप जब भी अपने कजिन के यहाँ जाते थे तो वो आपको समोसे और जलेबी खिलाते थे. सो वो सारी चीजें सोचो दिमाग पे जोर डाल डाल के, क्योंकि बचपन बहुत, मतलब बहुत सालों पहले की बात होगी, तो बहुत सारी चीजें याद नहीं आती है. बट पुट एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट टू एक्चुअली रिमेम्बर. सो आज अपना मिनिमम 7 मिनट्स, लेकिन 20 से 25 मिनट आप अपने आप को दो. ठीक है, एंड गो बैक टू द मेमोरी एंड फील वेरी वेरी ग्रेटफुल इन योर हार्ट दैट ऑल दैट मनी वाज स्पेंट ऑन यू, जिसके कारण आज आप जो हो वो हो. इजंट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट इट. सारे टॉयज के लिए बहुत सारा थैंक यू करना. बहुत सारे टॉयज हमने लाइक खेले हैं, और पेरेंट्स, मतलब कोई भी लेके आता था घर में. अगर आपको याद है कि आपको कौन कौन क्या चीज करता था जो पैसे के साथ आई है, तो it will become very easy for us to actually feel a heartfelt gratitude towards. So सारी memories of the childhood and youth, ठीक है, उसमें जब तक शादी नहीं हो गई, अगर शादी हो चुकी है तो तब तक जो पैसे जिसने भी खर्च किए, आपके मामा ने आपका कन्यादान किया था, ठीक है, उन्होंने आपको क्या पहना के किया था, बिकॉज इंडियन कल्चर में हम ज्वेलरी पहना के कन्यादान करते हैं, है ना. तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू. मामू खुद ही लेके आते हैं जो भी उनको करना होता है. और जैसे जैसे आप हर मेमोरी के लिए बहुत दिल से थैंक यू फील करोगे फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट, तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रही हूँ इसमें पैराग्राफ से, योर मनी विल मैजिकली इंक्रीज इन द फ्यूचर एंड इट इज गारंटीड बाय द यूनिवर्सल लॉ. ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस हमारी कि हमको एक नोट लेना है जिस भी आप कंट्री में, वी आर और लॉक्ड इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है आपको वो लेनी है. कोई सा भी वैल्यू का वर्ड का नोट लेना है. इट इज, मतलब उस पे 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा है, 50 लिखा है, 80 लिखा है, 100 लिखा है, डज नॉट मैटर. ठीक है, आप 10 रुपए का भी नोट ले सकते हो, 5 रुपए का भी नोट ले सकते हो. ठीक है, उसके ऊपर जितना बड़ा नोट है उतना ही बड़ा सामने की तरफ, है ना. नोट के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंडिया में सामने जहां गांधी जी का फोटो होता है, और एक पीछे की साइड होती है. सामने की तरफ जितना बड़ा नोट है उतना ही बड़ा आपको व्हाइट पेपर चिपकाना है, और उस पे ये लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. क्योंकि मनी एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी के साथ हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मर्ज कर रहे हैं. और इस वाले नोट को हम हाथ में अपनी दोनों फिंगर टिप से, दोनों हाथों की फिंगर टिप से उस नोट को हाथ में पकड़ के दिल से थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन द पास्ट के लिए हम थैंक यू बोलेंगे. और ये थैंक यू हमको एक बार सुबह बोलना है, एक बार शाम को बोलना है. वैसे रॉन्डबा ने लिखा है, और एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू, मतलब 2 बार तो करना ही करना है प्रैक्टिस में. बट ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत बार भी करना चाहते हो तो आज करते रहना पूरे दिन. ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस अलग अलग फेजेस में. पहली है कि जिसमें आपको शांति से एक जगह बैठना है, और बचपन से लेके एक छोटी छोटी चीजें जहां जहां पे आपके लिए पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, वो सारी सोचनी है, जिसमें आप जितना ज्यादा टाइम लगा सकते हो उतना लगाना. जितनी जिंदगी बदलनी है, ठीक है, उतना टाइम उस हिसाब से लगाना. बट 7 मिनट्स भी आप लगाते हो, डजंट मैटर. ग्रैटिट्यूड दिल से होना चाहिए. फिर उसके बाद ये है सेकेंड फेज ऑफ द प्रैक्टिस में, जो पेपर नोट है करेंसी, उसके सामने की तरफ हमको ये लगाना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. और इसको एक बार सुबह, एक बार शाम को अपनी फिंगर टिप से पकड़ के हमको, बिकॉज फिंगर टिप्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और उस वक्त ग्रेटिट्यूड की एनर्जी फ्लो हो रही होगी, तो सारे नर्व एंडिंग्स में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, उसको मर्ज करेंगे हम जो ऑलरेडी हमने नोट लिया हुआ है. And we will thank for all the money, that will be thankful for all the money we've been given throughout our life. एक बार सुबह, एक बार शाम को. ये हमारी आज की प्रैक्टिस है. So that's about it. और इसके बाद ये वाले नोट को आप अपने वॉलेट में रख देना हमेशा के लिए. आप देखना आपका वॉलेट हमेशा भरा रहेगा. ठीक है, ये वाला वॉलेट, और जब भी आपको दिखे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो दिन में. एक आज के बाद, आज तो जैसे लिखा है वैसे ही हमको करना है. आज के बाद जैसे आपको जैसे ही नजर आया आप उसको कभी निकाल लो. आप टैक्सी में जा रहे हो आप उसको निकाल लो. ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, उस नोट को निकाल के एक बार 2 मिनट के लिए हाथ में पकड़ के, थैंक फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव बीन गिवन थ्रू आउट योर लाइफ.
और ये हमको करना है। और आज के बाद से कभी भी कहीं से भी किसी भी रूप में और कितने भी अमाउंट का पैसा आ रहा है, आपके लिए वो सेलिब्रेशन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी सेलिब्रेटरी। अगर कहीं से भी चाहे आपको 10 रुपए मिले, उसके लिए इट शुड बी लाइक अ सेलिब्रेशन। वाओ, आई गॉट मनी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी 10 रुपीज, ठीक है? सो ये हमको करना है। और कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस आ जाएं लाइफ में, डज नॉट मैटर, कभी भी गिरना मत, बिकॉज ये गारंटीड यूनिवर्सल लॉ है। लॉ मतलब सुबह सूरज उगता ही है और रोशनी होगी, चाहे कोई बिलीव करे चाहे ना करे। उसी तरीके से ये लॉ है, ये यूनिवर्स की लॉ है कि आप जिस चीज के लिए थैंक यू बोलोगे वो आपकी जिंदगी में बहुत बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी, ठीक है? सो आप देखोगे अब के बाद से अगर ये प्रैक्टिस हम जब डिलीजेंटली करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से पैसा मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो, ठीक है? आपको बहुत मैसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ड्रेस आपने देखी थी मे बी अगर वो 4,000 रुपए की है, वो आपको 1200 में मिल जाएगी और आपको लगेगा ये कैसे हो गया, ठीक है? सो मैसिव डिस्काउंट्स मिलने लग जाएंगे, रिबेट्स मिलेंगी, डिक्रीजेस इन कॉस्ट मिलेंगे, कोई भी मटेरियल थिंग मिल जाएगी, कोई कभी कभी वो गिफ्ट में मिल जाती है जो आपको चाहिए थी, एग्जैक्टली वही आपको गिफ्ट में मिल जाती है। कभी अनएक्सपेक्टेड कहीं से कैश या चेक आ जाता है, आपको लगता है कि ये कहाँ से आया है, ये पता नहीं कौन सा दबा हुआ पैसा होता है, कहाँ से आता है, बिकॉज हाउ में तो हमको जाना नहीं है, हमें बस अलाउ करना होता है। तो कहते हैं नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। सो यू कीप अलाउइंग इट। पहले तो सोचो कि यस आई एम वर्दी टू रिसीव अबंडेंस ऑफ मनी। सबसे बड़ा ब्लॉक वही हो जाता है कि अभी भी हजारों और फ्यू लैक्स में ही हम सोचते रहते हैं। सो इट इज लाइक थिंक बिग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बिकॉज मनी बहुत फ्री फ्लो के साथ आता है। और बार बार अपने आप को बोलते रहो, माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली एंड आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद ईज, ओके? एंड यू डोंट नो, अपने माइंड सेट ब्लॉक मत करना कि ये कैसे होगा, अब हाव में गए सब गड़बड़ वहीं पे हो जाती है, ठीक है? let it flow to your life. So that's about it. And it says an abundance of gratitude for money equals to abundance of money. So आज abundance of gratitude हम करेंगे ना। So और कभी भी अगर कंप्लेनिंग जोन में आप जा रहे हो पैसे के लिए, तो पहले ही पूछ लेना कि क्या मैं इसका भुगतान करूंगी, इस कंप्लेन का, उस कंप्लेन का भुगतान मतलब लॉस ऑफ मनी। सो इसलिए आज से इसमें लिखा हुआ है, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट जब भी आप पैसे रिसीव करो कहीं से, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रिफंड है, चाहे वो डिस्काउंट है, या फिर कोई आपको कुछ दे रहा है जो पैसे से आई है, आप उसके लिए दिल से शुक्राने में रहोगे, ठीक है? दैट इज व्हाट इट इज। और आज से हमको यही करना है। एंड बस आज की प्रैक्टिसेस, पहला वाला काउंट माय ब्लेसिंग्स, जो माय ब्लेसिंग्स ही होगा, हम सबका काउंट माय ब्लेसिंग्स, बिकॉज आई राइट दिस ऑन द टॉप बिफोर राइटिंग द ब्लेसिंग्स, तो मेरे मुंह से वैसे निकल जाता है। सो काउंट माय ब्लेसिंग्स इज 10 आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखती है, उनको रीड करना है और फिर एक एक के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। कोशिश करो आउट लाउड रीड करो। उसके बाद phase 2 of the practice है sit down, take a moment to yourself, शांति से, जब कोई आसपास नहीं है, फोन नहीं बज रहा, कुछ नहीं बज रहा, एंड बचपन में जाके सारे अपने सोचो कि जहाँ पैसा खर्च हुआ है आपको सब कुछ मिला है विदाउट एनी चार्ज। और जैसे जैसे आप सोच रहे हो, जैसे जैसे मेमोरी आपको आती जा रही है, आप से एंड फील द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर इट, दिल से थैंक यू फील करो। और उसके बाद आज जो नोट वाला करना है हमको, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ, लिखना है आपको एक व्हाइट पेपर पे जो चिपका हुआ होगा नोट के साथ में। और इस पेपर को, इस नोट को आज आपको अपने साथ रखना है और सुबह और शाम को इसको दोनों हाथों से पकड़ के थैंक यू फील करना है सारे उस पैसे के लिए जो आप पे खर्चा हुए हैं आज तक। और आज के बाद से इसको आप अपने साथ में रखो, इस नोट को, और इससे आपको याद आता रहेगा कि मुझे मनी के लिए थैंक यू बोलना है। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, टेक दैट magic rock in your hand, think through the day and pick up the best thing that happened during the day. So that is, so yesterday वो ऋतु का जो डांस था वो मैंने पिक किया था। मतलब कल तो कंफ्यूजन, मुझे कई बार बहुत कंफ्यूजन होती कि कौन सी बेस्ट थी, ये बेस्ट थी कि ये बेस्ट थी कि ये बेस्ट थी। तो कल जैसे ही हुआ, आई वाज वेटिंग कि खत्म हो जाएगा और मैं बेस्ट चीज चूज करूंगी, दैट द डांस दैट ऋतु हैड पुट अप फॉर ऑल ऑफ अस yesterday. So yeah, it was beautiful. So now we go to the second book, The Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. And इसमें हम, Excuse हाँ me, जी, ma'am. Yes, ma'am. Hello. I want to say hello, everyone.
Hi. Hi, I'm Chanchal Gupta from district Solan in Himachal Pradesh. Okay. I am attending the session from last 2-3 days. 2-3 days. Before. Okay. Yeah. Bolo Chanchal. Just ma'am, I want to say hello everyone and Oh. introducing myself. Oh, thank you so much, I and am hi from everyone to you. And may you have the best life ever. आप अपनी सपनों की जिंदगी जिए और आपकी जिंदगी धीरे 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 बेटर होती जाएगी अब. तो बट सिंसियरली आप ये असाइनमेंट्स करना चंचल, ठीक है? Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. I have joined this group through Bharti Kakwani, ma'am. अच्छा, wow, wonderful. So thank you, Bharti. You can thank her every day. आप अपनी blessings लिखते हो तो आप उसमें भारती जी को thank you कर देना. Okay, thank you, ma'am. Also, thank you to you and all members. Yeah. I So, am also grateful and I am also thankful. I am also in this group. My English is not very good, but doesn't matter. It will get better and better. It's about the heart. It's not about the grammar and all of that. So, yes, इतना मत सोचो. And we all understand Hindi very well also. So, कोई problem नहीं. yes, ma'am. बट मेक एन एफर्ट एंड इम्प्रूव द इंग्लिश धीरे धीरे. आप देखना कि हमारी एक्चुअली एक मेंबर थी तो वहां पे बीच में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हिंदी में बात करूं, तो फिर मैंने बहुत ज्यादा हिंदी बोलना शुरू कर दिया क्योंकि आई थिंक ऑल्सो इन इंग्लिश इस तरह से, क्योंकि वो बचपन की प्रोग्रामिंग है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें हमको हिंदी बोलने के लिए पैसे देने पड़ते थे, फाइन पे करना पड़ता था, तो हमको बिल्कुल हिंदी बोलना अलाउड नहीं था. तो शुरू से ही मेरा शेकी बिजनेस था हिंदी में, तो वो तब से ही आदत पड़ गई थी उस स्कूल से दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो. तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था जब मैं पूरी तरह से हिंदी में बोलती थी. लेकिन फिर एकदम से 2-3 लोगों का डीएम आया, मतलब मेरे फोन पे व्हाट्सएप मैसेज आया, तो वो बोलते थे कि मैम ये सेशंस अटेंड कर करके और इसमें इतना लिखना पड़ता है इंग्लिश में हमको, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जा रही है और हमें नहीं पता था कि अब हम इतने अच्छे सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं. अगर ये नहीं होता तो हमारी इंग्लिश इस तरह से इम्प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि अब हम जैसे इसमें कुछ कुछ आगे जाके प्रैक्टिसेस आएंगी कि आपको अपने उन लोगों से बात करनी होती है हु हैव मेड अ डिफरेंस टू योर लाइफ, लाइक जिन्होंने आपकी कभी मदद की थी, तो वो भी कहते हैं कि अब हम इंग्लिश में बोल पाते हैं उसको. और इसके कारण से कहते हैं जो इतने सालों में हमारी इंग्लिश ठीक नहीं हुई थी, तो अभी असाइनमेंट्स करके इतना सारा ग्रैटिट्यूड लिख लिख के और बिकॉज भी आगे लिखना होता है and all that, so their English is really improved. So they were telling me कि ma'am please don't switch over to Hindi again. तो मैंने कहा doesn't matter, हिंदी में अगर मैं बोल रही हूँ असाइनमेंट्स और वो सब तो आप इंग्लिश में ही कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये बुक का हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, बट हम कभी भी नहीं लेते हैं इसलिए, because like I always feel that we all have to be global citizens. हम क्यों सिर्फ अपने आप को इंडिया में रेस्ट्रिक्ट करें, हम इंडिया का नाम मतलब फैलाएंगे ना पूरी दुनिया में. तो इसीलिए we have to step out of India into the world, and the world is our stage. I always say that कभी भी ये मत सोचना कि पता नहीं मेरे बस की है कि नहीं कि मैं इंडिया कभी छोड़ पाऊंगी. No, I mean the globe is your stage, the world is your stage. और अगर the world stage अगर हमको बनाना है उसके लिए हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, because ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना. Yes, While ma'am. of course Yes. हिंदी हमको अच्छा आना ही चाहिए, so हम सब ऐसे Yes, ही ma'am. I have already made many assignments in English through Bharti Kakwani ma'am classes I attended. Wow, amazing. So God bless you, Chanchal, and have the best of life. Thank you, ma'am. Okay? Thank you so So we much, continue with the everyone. acid test. अभी हम forgiveness का चैप्टर कर रहे हैं. कल हमको बहुत पावरफुल एफर्मेशन मिली थी जो पूनम ने और नीति दोनों ने शेयर करी थी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी गैलरी में रख लो. और ये रोज हमको दिन में 2 बार करना है, वो वाली एफर्मेशन फॉरगिवनेस की. जिस भी Yes, पर्सन को आपने ma'am. कभी ब्लेम किया. I have same book, subconscious mind wali. Okay, very good. So you can read it on your own also. That's lovely. है ना? Yes. Yeah. Yes, So ma'am. फिर आज वाला जो टॉपिक है which is the acid test for forgiveness, इसका मतलब है ये अग्नि परीक्षा.
कहते हैं ना, द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। जब भी कोई बहुत सुनहरी गोल्डन सुबह हो रही होती है, उसके पहले अंधेरा सबसे पिच डार्क होता है। तो इसीलिए जिंदगी में कोई बहुत बड़ा जब दरवाजा खुलने वाला होता है आपके लिए, तो उसके पहले कोई ऑब्स्टिकल, आपका एग्जाम होता है, जिसको मैं एग्जाम का नाम देती हूँ। मैं एग्जाम का नाम इसलिए देती हूँ क्योंकि पता है कि एग्जाम पास करने के लिए क्या करना है। ठीक है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, बस एक ही आंसर है। 50 सवाल है, उसका भी एक ही आंसर है। 100 क्वेश्चन है, उसका भी एक ही आंसर है। थैंक यू करते जाओ, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आप देखना कि आपके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। तो ये होता ही है, देयर विल ऑलवेज बी एन एग्जाम। उसी को इसमें एसिड टेस्ट का नाम दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, Thank you, ma'am. The acid test for forgiveness. There is an acid test for gold. There is also an acid test for forgiveness. If I should tell you something wonderful about someone who has wronged you, cheated you, or defrauded you, and you sizzled at hearing the good news about this person, the root of hatred will be in your subconscious mind playing havoc with you. Let us suppose you had a painful abscess on your jaw a year ago, and you told me about it. I would casually ask you if you had any pain now. You would automatically say, "Of course not. I have a memory of it, but no pain." That is the whole story. You may have a memory of the incident, but no sting or hurt anymore. This is the acid test, and you must meet it psychologically and spiritually. Otherwise, you are simply deceiving yourself and not practicing the true art of forgiveness. हाँ, तो ये टेस्ट है हमारा कि वाकई हमने उस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है जिसके लिए हम वो कल वाली एफर्मेशन कर रहे थे। उसका एसिड टेस्ट ये है कि आप सोचो कि कोई आपको बता रहा है दैट वो पर्सन बहुत खुश है, उसको बहुत बड़ा कंपनी में रेज मिल गया, उसको बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया और वो खूब ग्रो कर रहा है, बहुत ही खुश है और उसका लग्जरी अपार्टमेंट है और जो भी है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है उसी पर्सन के बारे में जिसने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया था। ठीक है, जिसने आपकी जिंदगी खराब की, आपका पैसा लेके भाग गया था, अभी उसका बहुत अच्छा हो रहा है जिंदगी में। अब आपको कैसा फील होगा? अगर अभी भी आपको बुरा लग रहा है ना मन में, इसका मतलब है फॉरगिवनेस अभी पूरा नहीं हुआ है और हम बस अपने आप को डिसीव कर रहे थे। मतलब हम अपने आप को फूल कर रहे थे कि हमने फॉरगिव कर दिया, बट एक्चुअली फॉरगिव तो नहीं हुआ है ना। तो ये एसिड टेस्ट है जो हमको अपने आप से करना चाहिए। जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर जॉ में आपका बहुत पेन हो रहा है ना, माउथ में आपको बहुत पेन हो रहा है और पूछो कि कोई और आके पूछे कि अब आपका पेन कैसा है, तो आप बोलोगे कि नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बट मुझे याद है कि तब वो पेन था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है, अभी मेरा जॉब बिल्कुल ठीक है। सो इस तरह से हमारा होना चाहिए फॉरगिवनेस रिलेशनशिप्स में कि आप बिल्कुल, आपको याद है कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ था, लेकिन ठीक है जाओ, सरबत का भला हो उसका भला हो, बस हो गया। एंड उसमें यही कल था ना, दैट आई रेडिएट पीस हैप्पीनेस एंड लव टू दैट पर्सन, है ना। सो इसी तरह से जो भी हार्मनी पीस लव हम उसको उस पर्सन की तरफ हम ही तो रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये वाला एफर्मेशन कर रहे हैं, तो हम ही रेडिएट कर रहे हैं ना। हम ही ने उसमें बार बार फॉरगिवनेस के लिए बोला था, ही इज फ्री और शी इज फ्री एंड आई एम फ्री, है ना। एंड टुडे इज माय डे ऑफ जनरल एमनेस्टी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सो मतलब एमनेस्टी इज लाइक कोई भी पॉलिटिकल क्राइम करके जो आप बरी हो जाते हो, यू नो लाइक आप छूट जाते हो उस केस से, so that's called amnesty. So it is my day of general amnesty. He is free, I am free, it is marvelous, and I send him or her peace, love and happiness and all of that, and I bless with all the blessings of life. I want all the blessings of life to go to him or her. तो इस तरह करके हम करते हैं, तो यही फॉरगिवनेस होता है। आप में से जिन भी लोगों को अपनी मदर इन लॉ से एंग्स्ट है थोड़ा सा, आप ये वाली प्रैक्टिस करना। मतलब मैं बहुत सारे आप में से लोगों को जानती हूँ जिनके साथ स्ट्रेन रिलेशनशिप है आपके और आपके मॉम इन लॉ के, है ना। तो आप एक बार ये वाला उनके साथ करना है और उस नाम से करना है, क्योंकि ऊपर वो फर्स्ट लाइन के बाद नाम देना पड़ता है उसमें। तो जो आप बोलते हो, आप मम्मी जी बोलते हो, आप मम्मा बोलते हो, आप जो भी बोलते हो, आपको उस नाम से ही करना होगा। तो ये उनके लिए करना। आप देखना कि आपके दिल में से सारे मतलब जो कई कई ब्लैक स्पॉट्स रखे हुए हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी खुल के आप नहीं जी पा रही हो और खुल के चीजें नहीं आ पा रही हैं। मतलब पैसा आ रहा है बट अबंडेंस में नहीं आ रहा, छप्पर फाड़ के ये हो रहा है बट अबंडेंस में नहीं हो रहा।
ठीक है, बस चल रहा है काम और ठीक ठाक सा चल रहा है। अगर ऐसी वाली जिंदगी है तो हम उसको अमेजिंग बना देंगे, है ना, बाय डूइंग वो वाला कल वाला एफर्मेशन जो है। सो दैट वी नीड टू डू। आप रेडिएट करो। इट्स नॉट दैट कि आपको बिल्कुल ही मतलब उनको यू हैव टू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, इट इज ओके, इतना भी कोई वो नहीं है, बट हाँ आपके दिल से उनके लिए ये एसिड टेस्ट को आप क्लियर कर लो, है ना। ये आपकी अग्नि परीक्षा है कि अभी भी उस वो पर्सन अगर बहुत खुश है, उसकी बहुत हेल्थ है, तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उन्होंने इतना दुख दिया मुझे, उनको उनकी कैसे अच्छी हेल्थ हो सकती है। अगर ये वाली फीलिंग अभी भी आ रही है तो इसका मतलब है एफर्मेशन करते रहो, टाइम लगेगा, कई कई चीजों को टाइम लगता है। इसीलिए आज वो एफर्मेशन मैंने डेलिबरेटली कराई थी, that I'm easy on myself, because generally we are not easy on ourselves। ठीक है, हम अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को बहुत ट्रबल करते हैं, हम रोते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम डिप्रेसिव हो जाते हैं, हम पिटी सेल्फ पिटी करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हम अपने आप को ट्रबल करते हैं, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह से। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी नियामत होती है कि आप अपना यू बिकम दैट पावरफुल बीइंग एंड यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर थॉट्स एंड इमोशंस। ओके, एंड देन वी विल सी दैट। और ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन जो कल वाला था, और उन्होंने तो सिर्फ 5 से 6 मिनट करने को बोला है ना, तो 5 से 6 मिनट पढ़ लो, टाइमर लगा के पढ़ लो, सुबह और शाम, दोपहर को भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सुबह दोपहर शाम 5 मिनट्स इट इज। और अभी एक के साथ करो, जब उसके साथ पूरा एंग्स्ट आपका चला जाएगा फिर कोई और होगा उसके साथ भी कर लेना, क्योंकि कई बार 2-3 जने होते हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया होता। लाइक इफ यू डोंट लाइक बीइंग विद समवन, आप उसके लिए कर लो, you know, like deliberately आपकी जिंदगी में वो पर्सन है बट यू डोंट लाइक बीइंग विद दैट पर्सन, तो उनके लिए आप कर सकते हैं, है ना। बस फिर हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं टॉपिक। मैम मे आई रीड नेक्स्ट? हाँ जी, चंचल आप प्रिया मैम है ना, आप उनसे बात कर लेना, कल आप रीड कर लेना। आज ये एक्चुअली जो रीड करते हैं ऑलरेडी कल प्री डिसाइडेड हो जाता है, मतलब है ना। तो जो टुमारो वाला है यू कैन टेल हर टुडे दैट यू विल रीड एंड वील डेफिनेटली गिव इट द अपॉर्चुनिटी। आज मीतू मैम पढ़ रही है। हाँ जी Okay. मीतू मैम। To understand all is to forgive all. When man understands the creative law of his own mind, he ceases to blame other people and conditions for making or marring his life. He knows that his own thoughts and feelings create his destiny. Furthermore, he is aware that externals are not the causes and conditioners of his life and his experiences. To think that others can mar your happiness, that you are the football of a cruel fate, that you must oppose and fight others for a living, all these and others like them are untenable when you understand that thoughts are things. The Bible says the same thing, for as a man thinketh in his heart, so is he. Yeah, so it says no that you are what you think. So you are what you repeatedly keep thinking about. If you think lack poverty, you become a poverty person. If you think abundance all the time, you become an abundant person. If you think my health is getting better and better, मेरी health अच्छी होती जा रही है, you start getting healthier and healthier. So man is what he thinks. ये Bible का quote है. That whatever the man thinks in his heart, so is he, है ना। तो इसमें यह है कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी अनहैप्पीनेस के लिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अगर आपको अंदर से कुछ इशू है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, अगर कॉज आपके अंदर है तो उसका मतलब जो भी अगर रिजल्ट आपके अंदर है तो कॉज उसके अंदर ही है। सो आप ही ने उसका सीड बोया था, आप ही उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं अपने अंदर। वी डोंट हैव टू, वी शुड नेवर थिंक दैट उसकी वजह से मुझे बहुत अनहैप्पीनेस रहती है, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से। सो ही सेज दैट, मतलब दोबारा से रीआइटरेट किया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जो उन्होंने पहले 2-3 चैप्टर्स में बहुत इलैबोरेटली लिखा था, दैट your own thoughts and feelings are creating your destiny। आपकी किस्मत आपके thoughts and feelings के कारण है, किसी को भी उसके लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत बढ़िया लाइफ चाहिए, आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंज कर दो। ठीक है, फर्दरमोर वो बोल रहे हैं कि कोई भी कॉजेज एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने उन चीजों को दिमाग में सोचा है चिंता के रूप में, और ये सोचा है आगे भी ऐसा ही होगा, इस पर्सन का बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता।
तो आप अपने दिमाग में उसको ब्रू कर रहे हो, और ब्रू कर करके वो फिजिकल शेप ले रही हैं आपकी जिंदगी में, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है टू थिंक दैट अदर्स कैन मार योर हैप्पीनेस, that you are a football of a cruel fate, that you must oppose and fight others for a living. All these and others like them are unattainable when you understand that thoughts are things. Okay. So इसमें है कि आप अपने आप को ना फुटबॉल की तरह मत ट्रीट करो कि कोई भी आपको किक करके जा रहा है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर किसी ने उधर से किक कर दिया, उधर जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको रियलिटी में देखोगे, ठीक है। That is what it is like. So hence control your thoughts and emotions and redirect and focus them for the things that you want to see in your life. लॉर्ड बर्नार्ड शॉ बोलते थे, मुझे उनका वो कोट अभी भी याद है, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, that whenever you are writing the story of your life, never give the pen to someone else. Okay, so you own that pen, it is yours, and you are the script writer of your destiny. So it was a very beautiful quote that I can think of by Lord Bernard Shaw, and who of course was a great and one of the heroes in his own way, you know. And that's what, so we are writing the script of our life and never blaming anybody. उसने ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा, it is नहीं, वो आप ही की vibration है जो जा रही थी और वो वापस आई है, क्योंकि आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो. Maybe you don't like that person so much, so you will attract everything from that person that you don't like. It is that simple. Law ऐसे ही काम करती है और कोई तरीका ही नहीं है, और ये साइंस है, you know. It is not that कोई spiritual बातें हम कर रहे हैं that way. So yes, me too, we'll be able to read only so much today. If you want to continue reading tomorrow, you can read the same book tomorrow also. Okay, and Chanchal, maybe you can read the magic book. आप एक बार बात कर लेना प्रिया मैम से कि कैसा है क्या है, वो आपका देख लेंगे डिक्शन वगैरह, फिर हम पढ़ लेंगे, है ना. So summary of about this chapter हम कल पढ़ेंगे. So thank you so much. Anyone wants to add or share? So you, हाँ जी, Dipti, I want to ask one thing. Yeah. All your affirmations में ना मेरे ये terrace पे एक swimming pool है, so I dip my leg and I say the affirmations. Is it okay? Of course you can. Water has Yes. a memory, so your swimming Yeah, pool yeah, is that- full of your positive thoughts. Yes, that is what कि मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं कर रही. अरे नहीं, नॉट एट ऑल. बल्कि पूल में हो तो हम लोग जब भी सी बीचेस पे होते हैं या सी में होते हैं, सो यू नो, लाइक आई ऑलवेज एंड द पीपल हु आर विद मी, वी ऑलवेज राइट आवर गोल्स एंड ड्रीम्स एंड यू नो इन आवर हैंड राइटिंग, एंड वी पुट इट इनटू द सी because it encompasses the whole world. And now that ink is dissolved, or whatever you had written with a strong intention, that's dissolved in the water of the sea, which is global. मतलब समुद्र तो एक ही होता है ना, उसका नाम चेंज होता रहता है अलग अलग Yeah, yeah. जगह पे. So it's like that. So now the affirmations or whatever your dreams and goals, always do that. Whenever I go to Goa or any place जहाँ पे sea होता है, always put my affirmations into the sea with very strong intentions. And then you see that happening in your life. So yeah, you already have a pool which is so much of water. Water is amazing. Even एक ग्लास में अगर आधा भी पानी होता है, आधा ग्लास में पानी, अगर उसको भी जो बोल के पीते हैं, that comes true. So That तो we swimming are- pool तो बहुत we are- बड़ा है. Yeah, yeah, that तो we are doing. Yeah, कभी कभी भूलते हैं, otherwise always we remember. yeah. So that's amazing. हाँ जी, सरोज जी, सुनैना and Saroj and Amrita. Okay, so we'll keep it short. We have 3 people with us today who want to share, which is beautiful, while at the same time we want to finish on time also. हाँ जी, सुनैना. दीप्ति हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते अच्छा, तो फिर सरोज जी बताइए. थैंक यू मैम. सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आपकी जुबान में कुछ सरस्वती है, और मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए ना, कि जो ये एफर्मेशन मैं सबका कर होता रही है हूँ. सरोज जी, इसको बोलते हैं वाणी सिद्धि योग. हाँ, यही हाँ, है ये आपका. बोला जैसे जाता है. आपने तो फर्स्ट वो टाइम जो सबके मैंने पास होता एफर्मेशन है. जो मैंने शेयर किया था, आपने मुझे बोला था कि आपका देखना इंटरनेशनली और आप इंटरनेशनली भी आप वो करोगे. पता कल क्या हुआ, मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, वो टेक्सास में रहती है. तो मैं जब टेक्सास में जाया करती थी, मेरा ब्रदर इन लॉ वहाँ रहते हैं,
तो वहां पर उनका फंक्शन वगैरह थे, जैसे 2-3 बार मैंने विजिट किया अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ड्रेसेस जो लेके गई यहाँ के बुटीक्स वगैरह से गिफ्ट करने के लिए। तो वो हमेशा प्रेज करती थी कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है ड्रेसेस का ना। तो मैंने कल उससे वैसे बात की, मैंने कहा उस भाई कुछ मैं इधर यहाँ कर रही हूँ, वहां पर कुछ हो सकता है, जैसे मतलब जैसे कि कुछ इंडियन ड्रेसेस का या कुछ इंडियन वेडिंग्स में जैसे जो होता है। तो मैंने जस्ट उससे इतना बस ऐसे बोला, और पता मैम उन्होंने मुझे एक पूरा वेडिंग पूरा एक फुल वेडिंग का प्लान दे दिया कि हमारी जो वेडिंग है वो आपने देखनी है, आपकी जो ड्रेसेस का टेस्ट इतना अच्छा है कि मतलब जितनी भी ड्रेसेस हमारी शादी में जिस चीज की भी होंगी वो सारा आपके जिम्मे है, और उसमें जो भी चीजें यूज होंगी, जो कुछ भी होगा ना वो हम लोग आप करोगे। और मेरा फंक्शन हिट होने के बाद फिर आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो मैम हेलो मैम, आप क्या? आपके वो 1,000 रुपए 1 करोड़ होने वाले हैं, बस आप देखते जाओ आगे। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड और थैंक यू ऑल बोलते द ग्रुप रहिए that मेंबर्स। I'm attracting money from all over the world। ये माइंडसेट में आप डाल दो, इसको फिट कर दो सबकॉन्शियस माइंड में। यही मैं कर चुकी हूँ, और मैं ना जिस चीज में को मैं बिलीव कर चुकी हूँ ना वो चीजें अचानक से सामने आ रही हैं। मतलब जिस चीजों को जो पिक्चर्स को मैंने फ्रेम कर रखा है, जो आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में वो है, जो पिक्चर्स मैंने फ्रेम कर रखी है वो एकदम से और आपको पता है मैं अभी सिर्फ फ्राइडे को ही अपना सामान लेके आई थी, है ना, और वो काफी सारा सामान था, और वो सोचो मेरा कल खत्म हो गया कि, और लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट आप क्या ला रहे हो और आपका मतलब वो टेस्ट अच्छा है। तो वो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Any of us और will need some nice outfit, तो हम आपको फोन करेंगे। थैंक यू। Thank you. God bless you with so much abundance and happiness and excellent health. And may you keep attracting। अभी तो टेक्सास से आया है, बाकी 197 कंट्रीज हैं दुनिया में। थैंक यू मैम। Yeah, thank you for sharing। हाँ जी अमृता। Hello, ma'am. Hello, everyone. I am from Surat, and मेरी एक बोल सकते हैं मैनिफेस्ट हो गई। फॉर वन डे मैंने दीप्ति मैम को ऐसी एक रील भेजा था which was about Goa, that मेरे पेरेंट्स गोवा भेजने के लिए मान गए हैं। wow, it's so amazing। वाओ, तब मैं और आप गोवा जा रही हैं हाँ, कब? आज और कल? आज मैं गोवा के लिए निकल रही हूँ। आप गोवा के लिए अभी निकल रही हैं। और हाँ इन्होंने मुझे रील भेजी थी, जो ये कभी कभी भेजती रहती हैं मुझको कुछ ना कुछ। हाँ, तो और इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि मैं इतने सारे ट्रिप्स हो रहे थे ना मेरे, अप्रैल से लेकर अभी तक में 4 ट्रिप्स हो चुके हैं। सो आई वाज लाइक नाउ आई विल बी हैप्पीली एट होम। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे जो एक ताऊ जी है हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब उनकी तरफ से आना इट वाज लाइक इम्पॉसिबल। ही वाज लाइक कि तुम लोग को इस बार जाना ही है ना, गोवा चले जाओ। एंड वी ऑल वर लाइक ओ माय गॉड। उन्होंने जो गोवा जाने के लिए अलाउ किया, फटाफट टिकट बुक कर दिया। So I'm going to Goa today। Wow, have the blast there. Go to all the nice, Thank you, ma'am। enjoy the beach and the beautiful drizzle and rain. Goa is very beautiful in rains। Thank you अमृता so मुझे भी much, विजुअलाइज कर लेना वहाँ पे। मैम। एंड मैंने ना फर्स्ट जनवरी को मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि आई वांट टू विजिट 10 प्लेसेस In this इन year? दिस ईयर, एंड 4 प्लेसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो अगला तो दिल्ली है शायद। डेफिनेटली मैम। अमृता मयूर हमें तो विहार phase सूरत बुला लो, 1। सूरत आना है बहुत टाइम से। No, Amrita, we are all waiting for come you। so often to stay in my house प्रिया and प्रिया तनेजा के लिए लिख देना डेफिनेटली gratitude। डेफिनेटली। इवन आई एम वेटिंग। मैं अभी दिल्ली ऐसे कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी ना, तो मैंने बहुत सारा लव भेजा था दिल्ली को, तो दिल्ली मुझे हाँ, जल्दी बुला लेगा। बस दिल्ली बुला लेगा, जिस चीज को लव भेजो वो बुला लेता है। तो वो दिल्ली में हम सब आपको घुमाएंगे, स्पेशली मैं घुमाऊंगी आपको सारे हाँ दिल्ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डन डन डन। जब मैं लेकिन ऑफिस में सूरत में होंगी मुझे तो बुला तुम लो। घुमाना। फिर मैं ऑफिस से आती हूँ, फिर ये चिपक हो जाती है मुझसे। तो वैसे भी घूमती रहती हूँ। Yeah, do that and thank you Priya, you're so sweet। आपको पता है बहुत जन ये समझते हैं कि अमृता मेरी बेटी है।
अमृता तुम्हारी बेटी है। आई थिंक वो वाइब देखते होंगे ना, वाइब। वाइब दिखता है। तुम बोलती भी वेटिंग फॉर यू अमृता। हाँ, पूनम बोलते भी ऐसे ना बेबी, नहीं, तो वो बेबी बोलती है। मदरली फीलिंग आ जाती है ना, मतलब Alright, पूनम great. मतलब Thank you, Amrita, and have a blast in Goa and have the best trip ever of your life.